Okay. Hi guys, welcome back. Now we are doing the next chapter. This chapter is from Bernheim and Winston. बुक चेंज होती है ना तो उसका काफ़ी सब चीज़ें चेंज हो जाती है. बर्नहाइम एंड विंस्टन के एक तो बैक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सेकेंडली इसके अंदर ना थोड़ा सा यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ लिटिल डीपर मैनर. It's not difficult. I know a lot of students who come back to me and say, मैम uncertainty वाला चैप्टर, रिस्क वाला चैप्टर तो बहुत मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आया. स्लोली चलो. मैंने इस चैप्टर की वीडियोस को डेलिबरेटली थोड़ा सा और छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, छोटे छोटे कैप्सूल फॉर्म्स में बनाया है, except for one question which is insurance, one video which is insurance. I've made it in a smaller part simply because I want you to understand each part in a very segmented way. So human brain is a beautiful thing. One of my counselor friends used to say, still says that human mind is a beautiful thing. It works very well in boundaries. So when we do something in a segmented manner, you know what happens? What happens is कि अगर आपको लगता है कि आपको एक पूरा का पूरा लाइन याद करना है, it's overwhelming. आप बोलो मुझे 2 words हर रोज के याद करने हैं. It's simpler ना. So that is what we are doing. I'm not saying you do one video a day. No. I'm saying you do one video at a time. तो उसमें क्या होगा कि आपको पता है कि आपको पूरा समझना है, बट अभी आपका फोकस क्या है कि मुझे सिर्फ ये पार्ट समझना है. ये पार्ट अच्छे से समझ में आता है तो उसके बाद मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट समझना है. So you work it out in a segmented form of a manner. That's the reason the videos have been made in this manner so far also. Because I believe that you guys, it's all about segmentation. It's all about knowing and doing one small thing at a time. अगर आप सब चीज़ें इकट्ठी ले लोगे तो बहुत ज़्यादा overwhelming लगेगा और नहीं हो पाएगा. Which is also the reason why a lot of people feel कि वो last minute पे कर लेंगे but वो कर नहीं पाते हैं. Micro, whether you talk about SEM 3 or SEM 4, is actually building a lot of instinct. How do you build instinct? How do you know that, a lot of people say, na, I knew that something is going to go wrong. I just knew it before. Because your subconscious mind is able to read those smaller signs which your conscious brain misses. So आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है इसकी कि आपका सबकॉन्शियस आपको आंसर बताना शुरू कर दे कि हाँ, when you're going wrong, your subconscious tells you, listen, there's something wrong. You're not doing it right. Right? So that is why we need practice. Because अगर हम वो नहीं करते हैं तो एग्जाम में कुछ भी ट्रिक आएगी, कोई भी नया ट्रिक आएगा तो हमारे लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा. Not that we have not covered things. We have covered things in a very detailed manner. But it's not possible for you to remember everything ना. आप सब चीज़ें क्रैम थोड़ी ना कर सकते हो. तो आपको will have to give it time to make sure that you understand them and they become a part of your subconscious, right? Coming back to choices involving risk. सबसे पहले हम एक so in this video I'm only going to talk about definitions and what it means around those terms that we are using. The first term I'm talking about is possibilities. Possibilities is also called states of nature. Now what happens is हम ये फिगर आउट करना चाहते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कितनी स्टेट्स ऑफ नेचर पॉसिबल हैं. अगर आप एक फार्मर के पर्सपेक्टिव से लो जिसने एक अपना प्लांटेशन करा है तो उसको पता है कि सीड्स अच्छे चूज करना उसके ऊपर है, अच्छे से फर्टिलाइजर यूज करना उसके ऊपर है, पेस्टिसाइड यूज करना उसके ऊपर है. लेकिन उसके ऊपर क्या नहीं है? वैगरीज ऑफ नेचर. हो सकता है कि बारिश हो जाए, हो सकता है कि बारिश ना हो. अगर बारिश हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके पास एक अमाउंट आएगा, अगर ड्राई रहेगा तो उसके पास एक अलग अमाउंट आएगा. बट वो चूज नहीं कर सकता कि बारिश हो या ना हो. दैट इज आउटसाइड ऑफ हिज परव्यू. So states of nature या possibilities वो चीजें होती हैं जो आपके eventual payoff को affect करती हैं, लेकिन आपका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता. The ones which affect, like for example, you go write an exam. Now when you write an exam, studying for the exam is in your hands. Making sure that you give a good paper is in your hands. Whether the examiner you get is somebody who understands your concepts or not is not in your hand. तो अगर आपको एग्जामिनर भी वैसे मिल जाएगी जो समझती है आपका, तो
तो आपके पास एक सर्टेन मार्क्स होंगे। अगर आपका एग्जामिनर ऐसा होगा जो नहीं समझता तो आपके पास एक सर्टेन अदर मार्क्स होंगे। क्या आपको एग्जामिनर कैसा मिले वो आपके कंट्रोल में है? नहीं है। सो दैट मीन्स these are the possibilities or these are the states of nature. So whatever you cannot control, whatever is not in your direct purview of control, उसमें जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, उसमें जो चीजें होती हैं, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ नेचर। स्टेट्स ऑफ नेचर जो है दे आर एसोसिएटेड विद प्रोबेबिलिटी। स्टेट्स ऑफ नेचर इज एसोसिएटेड विद प्रोबेबिलिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल फार्मर बोल सकता है कि मुझे पता है कि इस महीने में बारिश होती ही होती है, सो द चांसेस ऑफ रेन इज वेरी हाई, लेट्स से 70%। ही से 70% चांस है कि रेन होगी ही होगी और 30% चांस है कि वो ड्राई होगा। सो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी का मतलब है वेदर इट रेन्स और नॉट हैज नो it has no bearing on it being dry. मतलब it can't be rain and dry together. या तो rain करेगा या फिर dry होगा. They are mutually exclusive events. So there can't be an episode where it's raining also, it's dry also. That's not true. Which is why, क्योंकि हमारे पास exclusive probability है, इसलिए जितनी भी states of nature होती हैं, उनको अगर हम एक probability assign कर देंगे, तो total होगा probability का वो होगा 1. So for example, two people are playing. A and B are playing. They are playing with each other. Okay, and they are playing, let's say, rock paper. No, they're playing, let's say, flipping a coin. A says अगर heads आएगा तो मैं win करूँगा, अगर tails आएगा तो B says मैं win करूँगा। तो दो पॉसिबिलिटीज क्या है इस इवेंट में, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। अगर हेड्स आया तो ए विन कर गया, टेल्स आया तो बी विन कर गया। द चांसेस ऑफ ए विनिंग इज 50%, द चांसेस ऑफ बी विनिंग इज 50%। व्हेन यू ऐड बोथ ऑफ देम अप इट्स 1, राइट, बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 1 2 जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको ऐड करोगे तो 1 आएगा। यू रोल अ डाइस। जब आपने एक डाइस रोल किया तो आपके पास क्या आ सकता है, यू हैव पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 5 और 6। आपके पास ये 6 प्रोबेबिलिटीज हैं। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अगर 1 आएगा तो 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, 2 आएगा तो 1 3 4 5 6 नहीं आएगा, 3 आएगा, so on and so forth, which means that the probability of each event happening will be 1 by 6 and the total will add up to 1. सो प्रोबेबिलिटीज हमारी एक्सक्लूसिव होती हैं और जो टोटल होता है प्रोबेबिलिटी का वो हमेशा 1 होता है। और प्रोबेबिलिटी हमारी 2 तरह की होती है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर आप पास्ट डेटा स्टडी करते हो, पास्ट इवेंट स्टडी करते हो और फिर अपना ऑब्जेक्टिव देते हो कि भाई मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन द फार्मर इज थिंकिंग अबाउट वेदर इट्स गोइंग टू रेन और नॉट, वो सोचता है ओ लास्ट ईयर भी रेन हुई थी, लास्ट ईयर भी रेन हुई थी, लास्ट ईयर भी रेन हुई थी। अगर 3 साल से रेन होती आ रही है इस वेदर के अंदर तो इस साल भी तो रेन होगी। दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। That is objective probability. Subjective probability is you look at the cricket teams today in IPL and you say, oh, this player has been performing really well और ये player इसका part है, but उसका उसका कोई और part है, तो because of this player and this combination and this whatever, this team is going to win. That is subjective probability. So जब आप अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन लगाते हैं उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। जब आप डेटा स्टडी करते हो और उसके बेसिस पे कोई इंफॉर्मेशन निकालते हो तो उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। सो हम लोग इस चीज को सो दिस इज माय बेसिक, बट द बेसिक थिंग इज कि हम अनसर्टनिटी स्टडी क्यों करते हैं। व्हाई डू वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर? वी ओनली नीड टू स्टडी दिस चैप्टर बिकॉज ऑफ अनसर्टन पे ऑफ्स, बिकॉज ऑफ अनसर्टन पे ऑफ्स। सो हम क्या बोल रहे हैं, I'll take a farmer example. Suppose you're a farmer. आपको पता है कि अगर रेन हो जाएगी तो आपके पास पे ऑफ जो आएगा लेट्स से वो $100 का आएगा, और अगर ड्राई हो जाता है तो आपके पास पे ऑफ आएगा $10 का। Now there are multiple problems involved in these kind of payoffs. Uncertain payoffs है ना। Uncertain क्यों है? क्योंकि मेरा पे ऑफ किसी ऐसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है जो चीज मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। Whether it rains or it is dry, I can't control it. So my payoff, my earning, whatever I can make depends on something which is not in my hands. Isn't that very annoying and frustrating?
इट इज। सो दैट इज द रीजन हम इसको स्टडी कर रहे हैं। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं 2-3 चीजें। वन, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि फार्मर की नेचर जो है वो कैसी है, कि उसके ऊपर हम ये देखें कि उसको इस चीज से कितनी तकलीफ हो रही है। Everybody has different thresholds of taking risk. Everybody has different thresholds of dealing with uncertainty. So we are trying to understand कि जो फार्मर की नेचर है, जो फार्मर का थ्रेशोल्ड है, उसके बेसिस पे वो कितनी ये अनसर्टनिटी ले सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो अनसर्टनिटी है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्या हम इसके अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस ले सकते हैं? क्या हम कोई इसको रिस्क को हेज कर सकते हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है? First things first, we have already understood the total probability should be equal to 1. The second thing we are trying to say is that we want to understand कि भाई ठीक है, ये मेरा $100 है, ये मेरा $10 है। दूसरा फार्मर बोलता है आई लिव इन अनदर एरिया, मेरे को भी बारिश से फर्क पड़ता है, बट अगर रेन होगी तो मेरा पे ऑफ होगा लेट्स से $80, और अगर ड्राई होगा तो मेरा पे ऑफ लेट्स से होगा $60. Okay, so now what I'm saying is कि let's suppose the probabilities are such that इसका expected payoff and इसका expected payoff are same. Expected payoff मतलब average payoff. Let's say average payoff of these two are the same. So वो भी बोलते हैं मुझे रेन और ड्राई सीजन से फर्क पड़ता है, बट वो बोलते हैं रेन होगी तो मुझे पे ऑफ मिलेगा 65 और ड्राई होगा तो मुझे पे ऑफ मिलेगा 45। ना यू सी, इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, इसके बीच में गैप बहुत कम है। दोनों का हो सकता है एवरेज पे ऑफ सेम ही हो। सो अगर दोनों की 50-50% प्रॉबिलिटी है तो दोनों का एवरेज पे ऑफ सेम है, $55 ही रहेगा। लेकिन इसकी जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर तो ड्राई हो जाता है तो उसको $10 ही मिलेंगे, जिसकी 50% प्रोबेबिलिटी है। सो अगर वो फार्मर का सोच ऐसा है कि यार ये तो बहुत रिस्क है, तो उसको दिक्कत होगी ना इस चीज़ से। बट इन दिस केस उसको पता है कि 65 या 45 है, विच इज़ नॉट टू मच ऑफ अ डिफरेंस, तो इसके अंदर वेरिएबिलिटी कम है। सो डिपेंड करता है कि हमारी फार्मर की नेचर कैसी है, वेरिएबिलिटी कितनी है, एवरेज पे ऑफ कितना है, जिसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए कौन से पे ऑफ बेटर हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो स्कोप ऑफ समथिंग वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमारे पास 3 सर्टेन तरह के न्यूमेरिकल्स हैं और हमारे पास काफ़ी सारी थ्योरी है जो एग्जाम्स में आ सकती है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज the theory for this chapter is as important as the numericals for this chapter. So you cannot ignore the theory. So please do the theory as well. So whatever things we've spoken about so far, यही हम लोग इसी चीज़ों पे build up करेंगे। जो अभी हमने इस वीडियो में करा, that was only for understanding purpose. You don't have to remember anything out of that. You just have to understand that and that's it. इसमें से theory नहीं आती है, theory आगे वाले जो हम chapters करें, आगे वाला जो chapter करेंगे, मतलब इसी chapter में जो आगे वाला portion करेंगे, उसमें से आती है। Alright, so I'll see you in that next video. Thank you.